Very good afternoon, dear students and the listener of the channel Dialect English Lectures. Now, we welcome to all of you on this channel. Now, we are going to upload a new video for your progressing for your subjective command. And in today's video, we will discuss about the character of Bassanio, the important and very valuable character of the drama The Merchant of Venice. Dear friends and my dear students, as we know that Bassanio leaves a very less favorable impression on the reader's mind on in drama. Bassanio was very youthful, very intelligent, very witty, very smart, and a fortunate friend, a fortunate lover, and a waster of money. As we know and see that by behavior, Bassanio was a very humorous, and by talent, Bassanio was a very able and very talented horse rider. The other and important thing concerning Bassanio that he is noble by birth and a soldier by profession, as well as we continues know about it that Bassanio was a great money waster of his life. In the drama, there is only one character who doesn't think about money, what will he do in next day, having spent the money on the same day, and that was the character only in the drama Bassanio. As we see that Bassanio spends all his money in wasting and frivolous activity, and when he has to go to Belmont to get married to Portia, a beloved friend or lover, Bassanio totally depends on his friend for cash amount, his loving and a best friend Antonio. He demands to him 3,000 ducats, and Antonio manages this amount for Bassanio to help his for going to Belmont for trying his luck to go to marry for Portia. Now, in this series, with that Professor Kula Coach remarks about Bassanio that Bassanio was a very cunning man, and he depends totally for money on his best friend Antonio, and he just withholds all the things about the casket story to Antonio. If he reveals the secret of the casket to him or before him, it may be possible that Bassanio refuses to give him money, 3,000 ducats, what he managed on his behalf to Shylock. All these things shows here that somewhere Bassanio just leaves a negative character of his in the drama The Merchant of Venice. But as in the other thing, Bassanio, what and whom judged about him, they all judged less about Bassanio. Bassanio was a real sense a very fortunate friend of Antonio and a very fortunate lover or husband of Portia. Professor Aquila Coach remarks here that Bassanio only just wants to marry Portia for getting her money because she has a countless wealth or property of her father which she got inheritance. But all these views and remarks concerning Bassanio proved wrong at last when Bassanio uh, selected the right casket, and he was able and he had a right to get married to Portia. But as he received the letter from Antonio's side and read the letter completely, he announced the things before Portia, how he managed money
to reach Belmont and to get married to her, and he opened here his truly value before Portia that he was totally moneyless. This proved here that Bassanio was very honest by thoughts and doings. As Bassanio received the letter of Antonio, he refused to celebrate the things and the moment of his marriage, and just he decided to go to Venice to save his life, to save his best friend's life, Antonio's life. Bassanio started his journey. On the other hand, we can say that Bassanio was a very fortunate friend of Antonio. The other and important thing in Bassanio's character that Bassanio was equal compassionate as Portia herself was by behavior. Bassanio was very brave soldier and very intelligent personality of the drama. He seemed like a real prince, royal prince by his behavior, doing and habits. When Bassanio received a letter and knew something about his friends Antonio, that he was in clutches of Shylock and he had to save his life anyhow, he refused all celebrating and just started his journey to Venice to save his best friend's life, Antonio's life. All these things proved here that Bassanio was a true fortunate friend, a true fortunate lover, a true and a very intelligent personality of the drama, and all these things proved here that in real sense there was only one character who could marry Portia in such conditions or circumstances, and that was the character Bassanio. Dear friends or dear स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिसके बारे में हम और आप मिलकर बात करेंगे, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध चरित्र और किरदार के बारे में, जिस किरदार का नाम है बेसेनियो, जो किरदार मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर के नाटक का किरदार है। और इस किरदार के बात करने से पहले मैं मोहम्मद यासीन बख्श डायलेक्ट इंग्लिश लेक्चर्स की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। चाहने वालों और सभी चैनल को पसंद करने वालों लोगों का मैं आभारी हूँ, और वो तमाम मित्र और दोस्त और वो तमाम प्रिय छात्र जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बेल आइकन इसका दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्किल और लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में चैनल की रीच हो सके और लोग चैनल का जो हमारे माध्यम से एक ज्ञान उपलब्ध कराने की जो कोशिश है वो आप तक सार्थक हो सके, हमारा प्रयास कहीं ना कहीं सफल हो सके। आइए तो हम और आप शुरू करते हैं आज के इस सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण, जो कि सेकंड या सेकेंडरी जो कैरेक्टर था मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा का, जिस चरित्र किरदार का नाम है बेसेनियो, हम और आप उसकी बात करते हैं। बेसेनियो जो कि बहुत समझदार, बहुत यूथफुल, यानी बहुत ही यंग, जो अभी जवानी के शिखर पर पहुंचा ही था, यानी अभी बहुत यूथफुलनेस थी, बहुत एनर्जी थी, बहुत यंगनेस थी, बहुत ज़्यादा ग्लो था चेहरे पर, और बातों में बहुत एक्सपर्ट था बेसेनियो, बहुत माहिर था। ये क्वालिटीज़ ईश्वर की तरफ से थी कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस भी था, बहुत ज़्यादा मिलनसार भी था, बहुत ईजिली वे में लोगों को अपना दोस्त बना लिया करता था। और इस बात का प्रमाण ये है कि बेसेनियो, ग्रेशेनियो, लॉरेंजो, सेलेरियो और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े किरदार एंटोनियो जैसे दोस्तों को अपने जीवन में पाता है और जिनको अपना दोस्त बनाता है।
वाकई में बेसेनियो का जो किरदार है वो बाई बर्थ यदि कहा जाए तो बेसेनियो बहुत नोबेल था, और बाई प्रोफेशन यानी जो उसका कार्य था जिसमें वो माहिर था, वो बाई प्रोफेशन जो है वो एक सोल्जर, एक सिपाही था। और नरिसा ने तो ये भी कहा है कि बेसेनियो जो है वो एक स्कॉलर था और एक सोल्जर था। लेकिन प्रोफेसर क्यूलर कोच जो हैं वो कहीं ना कहीं बेसेनियो पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेसेनियो जो है वो मनी स्पेंडर था और वेस्टर ऑफ मनी था और स्पेंड थ्रिफ्ट था, और जिसकी वजह से बेसेनियो ने जो है अपना सभी धन जो है वो खर्च कर दिया था और ज़्यादातर वो अपने पैसे के लिए लोगों पर निर्भर रहा करता था। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाने का प्रयास किया है बेसेनियो पर कि बेसेनियो जो है वो वास्तव में पोर्शिया से जो विवाह करना चाहता था वो सिर्फ इसलिए चाहता था कि क्यों पोर्शिया के पास अथाह संपत्ति थी और असीमित संपत्ति थी जो उसको अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी। लेकिन प्रोफेसर क्यूलर कोच के ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं, ये जो तमाम आरोप हैं जो बेसेनियो पर वो लगाने का प्रयास करते हैं, ये कहीं ना कहीं आरोप जो हैं वो बेबुनियाद और झूठे साबित हो जाते हैं अंत में, क्योंकि बेसेनियो का जो किरदार बाद में साबित होता है, जैसा कि लोगों ने बेसेनियो के बारे में जज किया है, जैसा कि लोगों ने बेसेनियो के बारे में अनुमानित किया, जैसा कि अंदाज़ा लगाया, और लोगों का अंदाज़ा कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। क्योंकि जब बेसेनियो को सेलेरियो के द्वारा वो पत्र प्राप्त होता है जिसमें बेसेनियो एंटोनियो इस बात को अंकित करता है कि उसका जीवन खतरे में है और वो बेसेनियो को तुरंत अपने पास बुलाना चाहता है, तो ये बेसेनियो के किरदार का प्रमाण ही था, ये बेसेनियो के चरित्र की उत्तमता और श्रेष्ठता ही थी कि बेसेनियो तुरंत अपने जो शादी के फंक्शन को सेलिब्रेशन होता है उसको तुरंत ही जो है वो पोस्टपोन करता है और तुरंत ही जो है वो वहाँ से निकलने का प्रयास करता है और तुरंत ही इस बात का निश्चय करता है कि वो किसी भी सूरत में जल्द से जल्द जो है वो वेनिस पहुँचेगा और अपने दोस्त एंटोनियो के प्राणों को बचाएगा, और ऐसा वो करता भी है। इससे ये साबित होता है कि बेसेनियो के जीवन में केवल पोर्शिया की या पैसे की अहमियत नहीं थी, बल्कि बेसेनियो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों को भी अहमियत दिया करता था, ये इस बात का प्रमाण है। इसके साथ साथ जैसा कि बेसेनियो बहुत विद्वान था, स्कॉलर था, बेसेनियो जो है एक बहादुर सिपाही था, ये तमाम प्रमाण जो बेसेनियो के बारे में पता चलते हैं। और भाग्य की बात ये थी कि बेसेनियो जहाँ खुद बहुत श्रेष्ठ और अच्छे से अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करने की कोशिश करता था, तो ये उसका प्रमाण था, ये उसकी अच्छाइयाँ ही थी कि उसको दोस्त के रूप में जो है वो एंटोनियो मिलता है, उसको प्रेमिका और पत्नी के रूप में पोर्शिया मिलती है, उसको दोस्त के रूप में जो है वो ग्रेशेनियो और सेलेरियो लॉरेंजो जैसे दोस्त मिलते हैं, जो जब पैसा नहीं होता है बेसेनियो के पास तब भी वो उसके साथ रहते हैं और उसका साथ देते हैं, उसको छोड़कर नहीं जाते। ये उसकी किरदार की खूबी ही थी। और बेसेनियो जो कि वाकई में दोस्ती निभाने वाला शख्स था, व्यक्ति था, और ग्रेशेनियो को वो बेलमोंट अपने साथ लेकर जाता है, ये उसके चरित्र का जो उत्तम और श्रेष्ठता है ये दर्शा देता है यहाँ पर। जबकि ग्रेशेनियो बहुत ज़्यादा बोलता था और बेसेनियो व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से, अपनी वेशभूषा से, अपने हाव भाव से, अपनी चाल ढाल से, अपनी बातचीत के अंदाज से वो वास्तव में एक रॉयल प्रिंस प्रतीत होता था, लगता था कि वो किसी राजसीय ख़ानदान और परिवार का व्यक्ति है। और ये तमाम बातें ये साबित करती हैं कहीं ना कहीं कि बेसेनियो का जो किरदार है वो वास्तव में श्रेष्ठतम किरदार है। बेसेनियो के किरदार को लोगों के द्वारा कम आंका गया है, लेकिन बेसेनियो के बारे में जो भी मर्चेंट ऑफ वेनिस के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ये है कि बेसेनियो एक बहुत ही अच्छा फॉर्चुनेट फ्रेंड है, बेसेनियो बहुत ही अच्छा फॉर्चुनेट लवर है। बेसेनियो वेस्टर ऑफ मनी ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो वेस्टर ऑफ मनी इस सेंस में भी हम ले सकते हैं कि वो अगले दिन पैसा कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा, इस बात की परवाह नहीं करता था। बहुत खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति था। हम इस बात को इस तरीके से भी जो है वो जोड़ सकते हैं और अंत में इस बात का प्रमाण दिया जा सकता है और साबित किया जा सकता है कि वास्तव में अगर पूरे विलियम शेक्सपियर का ये जो नाटक है जिसका नाम द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, यदि इस पूरे नाटक में कोई एक ऐसा किरदार है जो पोर्शिया से विवाह करने के लायक था और पोर्शिया का पति बनने के लायक था, तो वो केवल एक ही किरदार नजर आता है और वो किरदार सिर्फ बेसेनियो था।